چھپے رستم. سب کو یاد ہے چھپے رستم، یعنی ایسے کریکٹر، ایسے کردار جو وصفن ہے، بیہائنڈ دا کرٹن ہے، بیہائنڈ دا سین ہے، یعنی نامعلوم، بغیر شناخت کے، غیر معلوم، جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی بعض بات آپ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، لیکن جب آپ خدا ان کے لیے کام کریں گے تو خدا آپ کا منہ بن جائے گا، اور ہم جو پہلے زیرو تھے خدا اپنے جلال کے لیے ہیرو بنا دے گا. ہاللیلویا. وقت زبان کھول دیے. آئیں میرے ساتھ آج کا کلام شروع کریں گے. میرے ساتھ نکالے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 27 آیت. یہاں لکھا ہے کہ بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی حکمت جو ہے، جو ادراک سے باہر ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا کس طریقے سے ناکاموں کو، کمزوروں کو، بے وجودوں کو، بغیر شناخت کے، نامعلوم لوگوں کو، عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. کیوں استعمال کرتا ہے؟ تاکہ کوئی شخص اپنی لیاقت پر، اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی کوشش پر، اپنے زور بازو پر تکبر نہ کر سکے، غرور نہ کر سکے، بلکہ خدا پر تکیہ کرے، خدا پر فخر کرے. اور آج کا کلام جو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ ہے خروج کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے یہ شروع ہوا. اس میں ایک ہی کہانی میں دو کریکٹر، دو کردار دیکھیں گے. کہانی ایک ہی ہوگی لیکن اس میں دو کردار آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کہانی میں جو دو کردار استعمال ہوئے، یہ دو عبرانی عورتوں کو خدا نے استعمال کیا، جو عام دو عورتیں تھیں، یعنی جو دائیاں تھیں. خدا نے دو دائیوں کو استعمال کیا، جن میں سے ایک کا نام سپرا اور دوسری کا نام پھوا. یہ دونوں عبرانی عورتیں دائیاں تھیں، یعنی جسے کہنا چاہیے نرسز تھیں، اور اس زمانے میں تو دائیاں کہتے تھے. یہ عورتیں دونوں دائیاں تھیں اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. سپرا کا مطلب ہے خوبصورت اور چمکدار، اور پھوا کا مطلب ہے شاندار اور روشن. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے ان کے بارے میں سیکھیں، ہم کہانی کی طرف چلیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور جب یعقوب کے 12 بیٹے ملک کنعان سے سفر کرتے ہوئے جہاں یوسف تھا، یعنی 11 بیٹے، یوسف تو پہلے سے وہاں موجود تھا، وہاں مصر میں گئے کیونکہ کنعان میں کال پڑ چکا تھا، اور یہ 70 جانیں سفر کرتی ہوئی مصر میں پہنچی. اور جب یہ مصر میں پہنچے ہیں تو وہاں خدا نے ان کو بڑی برکت دی. یہ کثیر تعداد ہو گئی، یہ بڑھتے چلے گئے، یہ لاکھوں میں ان کی تعداد ہو گئی. اتنی زیادہ تعداد ہو گئی کہ فرعون بادشاہ کو فکر پڑ گئی کہ اگر یہ تعداد میں ایسے ہی بڑھتے گئے تو ہمارا کیا ہوگا. یہ تو ملک پر تسلط ہو جائے گا ان کا، یہ تو ملک پر قبضہ کر لیں گے، ہر جگہ یہی عبرانی لوگ نظر آئیں گے، مصری کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس کی دن رات کی جو نیند تھی وہ چاٹ ہوگی، اس کی دن رات کی نیند تھی وہ اڑ گئی. صرف اسے ایک ہی پریشانی تھی کہ یہ لوگ جو مہمان بن کر آئے تھے، یہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے آئے، یہ تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کی تعداد گن نہیں ہو سکتے. تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے جن میں ایک کا نام سپرا اور دوسری کا نام پھوا تھا باتیں کی اور کہا تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیت لے. یہ دو دائیوں کو جو عبرانی دائیں تھی، جو یوں کہیں کہ یعقوب کی نسل میں سے تھی، انہی کے قبیلوں میں سے تھی، ان دو دائیوں کو بلا کر کہا کہ کیونکہ اسرائیلی جو ہیں، عبرانی لوگ جو ہیں، وہ تعداد میں بڑھتے چلے جائیں، اور فرعون بادشاہ کو ایک ہی حال نظر آیا کہ ایسا کیا جائے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کو وہی مار دیا جائے. اس لیے اس نے دونوں دائیوں کو بلا کر ان کو ہدایت دی اور ان سے کہا کہ جب عبرانی عورتیں بچہ چلنے لگے، جب تم عبرانی عورتوں کو پتھر کی بیٹھوں پر بیٹھے دیکھو کہ اب بچے کا وقت قریب آ گیا، بچہ چلنے لگی ہے، بچہ پیدا ہونے لگا ہے، تو وہی اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی وہی گلا گھونٹ دینا، وہی لڑکے کو مار دینا. اگر لڑکی
क्योंकि वो खुदा से प्यार करती थी, खुदा से डरती थी, वो खुदा के अजायब को देख चुकी थी, वो खुदा के प्यार का एक्सपीरियंस कर चुकी थी कि खुदा कितना गयूर है, खुदा कितना महान है, खुदा कितने बड़े बड़े काम करता है। इसलिए खुदा से डरती, उसके रोब दबदबे को मानती थी। जब उन्होंने ये सुना और उन्होंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि जो ही अब्रानी औरतें बच्चा जनेगी, हम बिल्कुल कतई उस बच्चे को नहीं मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि वो खुदा उनके साथ चलती थी। और जब ऐसा हुआ कि उन्होंने लड़के जो थे वो छोड़ के चली गई, तो बादशाह फिर नाराज हुआ। उसने दाइयों को तलब किया और उसने कहा कि तुमने ये क्या किया? उसने कहा कि तुमने ये क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि जब अब्रानी औरतें बच्चा जने, यानी लड़का पैदा हो तो उसे मार डालना। लेकिन उन्होंने दाइयों ने डर होकर, दलेर होकर, क्योंकि जब खुदा साथ होता है तो परेशानियां डर चला जाता है, इसलिए उन्होंने डर होकर बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अब्रानी औरतें मिस्र की औरतों की तरह नहीं है। अब्रानी औरतें मिस्र की औरतों की तरह नहीं है। जो ही हम उनके पास आते हैं वो पहले से बच्चा जन के बैठी होती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अब्रानी औरतें लड़कों को ना छोड़ती, अगर अब्रानी औरतें लड़कों को मार देती, तो कोई लीडर ना पैदा हो, कोई मिस्र में से बनी इस्राइल को निकालने के लिए क्यादत ना करता। आपको बात समझ रही? लेकिन ये खुदा का प्लान था, खुदा का खौफ उनके अंदर था। उन्होंने लड़कों को छोड़ दिया, और जब लड़कों को छोड़ दिया तो मूसा पैदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे मंसूबों को, हमारे प्लान को, हमारे फ्यूचर को सब कुछ जानता। उन्हें पता था कि अगर ये लड़के मार देगा तो मूसा नहीं पैदा होगा, इसलिए लड़कों को छोड़ा गया और मूसा पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक आयत को देखेंगे, ज़बूर 105 और उसकी 14 आयत। यहाँ इस तरीके से लिखा है कि उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाह को धमकाया। ये बादशाह को धमकाने के लिए जो मैं जिक्र कर रही हूँ, ये इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि आपको याद होगा, अगर आप पीछे जाएं तो अब्राहम के साथ भी मुश्किलात पेश आई। बात का दिया था कि बादशाह भी उसको धमकाने की कोशिश करता था, लेकिन चूंकि खुदा साथ था, इसलिए खुदा ने बादशाह के भी, जिसे कहना चाहिए अराबों के रूप मोड़ दिए, बादशाह को भी धमकाया। और यहाँ भी बादशाह जो है वो दाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। उन्होंने दिलेरी से जवाब दिया, कहीं कलाम में नहीं लिखा उन्होंने सजा पाई, कहीं नहीं लिखा कि उनको जेलों में डाल दिया गया, बल्कि खुदा ने उनके लिए और ज्यादा रास्ते हमार कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा से डरते हैं, उसके मंसूबों को पूरा करते हैं, तो वो हमारे शरीर अपने फरिश्तों को पहले लगा देता है, हमारे शरीर अपने लहू की बाढ़ लगाता है। इसलिए कभी ना डरा करें, कभी ना शर्माया करें कि क्या होगा, आने वाले वक्त के लिए खुदा खुद ही आपको संभाल देगा। आइए एक हवाला देते हैं इंसान की किताब, उसका चैप्टर 29 और उसकी वर्स है 25। इंसान का डर बनता है, लेकिन जो खुदा पर तवक्कुल करता है वो महफूज होगा। और इसके साथ एक और हवाला देखना, देखें ज़बूर 34 और उसकी 7 वर्स में यूं लिखा है, खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाज़न होता है और वो उनको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गवाही देने में, इसलिए कलाम सुनाने में, इसलिए अपने किरदार को मसीह की सूरत में पेश करने के लिए कभी ना घबराए। अगर आपका दिल पाक नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है, तो कैसा डर वो मान के, डर से मतलब है कि खुदा के अहकाम को मानना, उसके रोब दबदबे को मानना, उसके नाम की तस्दीक करना, उसके नाम की तारीफ करना, उसके नाम की हम्द करना, ये है रोब दबदबा, ये है उसका खौफ, ये है उसका डर। जब हम उसका डर मानते हैं तो फिर खुदा अपने फरिश्तों को हमारे चारों तरफ महफूज करता है। और आपने देखा है कि जब मिस्र के पुराणों को मारा तो बनी इस्राइल के जो दरवाजों पर बोले क्या लगाया था, लहू लगाया था, और खुदा का फरिश्ता आया और उनको छोड़ता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आपने सोचते होंगे कि दाइयों को बचा तो लिया, लेकिन दाइयों को अजर क्या मिला, दाइयों का फायदा क्या हुआ? हालांकि उसने फायदे के लिए नहीं किया, लेकिन खुदावंद जो खुदा है, जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता,
यूं लिखा है, बस खुदा ने दाइयों का भला किया, बस खुदा ने दाइयों का भला किया और लोग बड़े और बहुत जबरदस्त हो गए। और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी, उसने उनके घर आबाद कर दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जब आप खुदा से डरते हैं, जब जब आप खुदा का हुक्म मानते हैं, जब जब आप खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, जब जब आपके घरानों से, आपके घरों से गीतों और ज़बूरों की आवाज आएगी, जब जब आपके घर से खुदा की सलामती के नारे लगेंगे, तो यकीन जाने जैसा दाइयों को अजर मिला जबकि फसल का दौर है, खुदा उससे बढ़कर आपको बरकतों से मालामाल करेगा। आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी आपके घर में गुर्बत नहीं आएगी। अगर आ भी जाए तो वो कादरे मुद्रे को गयूर खुदावन, वो मुहैया करने वाला खुदावन सारी मुसीबतों को दूर करके आपको अपनी बाहों में ले लेगा। खुदावन को मैंने पहले भी पढ़ा था कि खुदावन कमजोरों को, खुदावन आम लोगों को, खुदावन आप अपने लोगों को, जो जिसे कहना चाहिए गैर मारूफ लोगों को, सादा लोगों को अपने जलाल के लिए नाम के लिए इस्तेमाल करता है। और आपने देखा कि दाइयों की हैसियत क्या होती है, यानी आम सी औरतें होती है, अगर काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ना से। लेकिन फिर भी दाइयों ने अपने काम के साथ, अपने खुदा के साथ वफादारी की। वो दलेर नहीं, वो डरी नहीं, जैसे पतरस और यूहन्ना नहीं डरते। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 19 आयत में यूं लिखा है कि मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने, तुम्हारी बात ज्यादा सुने, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जो हमने देखा और सुना वो ना मांगे। पतरस और यूहन्ना को जब मना किया गया, जब धमकाया गया कि तुम यीशु का नाम लेकर बलाती ना करना, तो उन्होंने कहा कि तुम ही इंसाफ करो, क्या ये मुमकिन है, क्या ये वाजिब है कि हम तुम्हारी बात ज्यादा माने, खुदा की बात ना माने? हमने जो देखा है, हमने जो सुना तो कहेंगे। हालेलुया। और उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने खुदा बाप की मोहब्बत देखी थी, उन्हें यीशु मसीह के साथ रह के उसकी कुर्बत को, उसकी मोहब्बत को जाना था। उन्होंने अजायब देखे थे, उन्होंने मुर्दों को जिंदा होता देखा था, उन्होंने मिर्गी वाले को ठीक होते देखा था, उन्होंने कोड़ियों को पाक साफ होते देखा था, उसने देखा था, उन्होंने देखा था कि किस तरीके से वो हवाओं के पानियों का रुख मोड़ सकता है। इसलिए वो दलेर हो गए। वो कहते हैं कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसे कहने से कभी बात नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग मेरे दलेरी है, कभी ना शर्माएं, कभी ना परेशान हो। जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो आप आजकल मौत से सुन रहे हैं, जो आप काम देख रहे हैं खुदा का, जो करिश्मे करामात आप यीशु के नाम से, खुदा बाप के जलाल से देख रहे हैं, उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे सुनाने के लिए कभी ना शर्माएं, क्योंकि मुंह तो खुदावंद बनेगा, दलेरी तो खुदावंद देगा। आइए इसके जलाल के लिए जोरदार सीख रहे हैं कि खुदावंद जीरो से हीरो बना देता है। हाँ जी, क्या सीख रहे हैं? कि खुदावंद जीरो से हीरो बना देता है, गैर मालूम को मालूम बना देता है, आम को खास बना देता है, ना मालूम को मालूम हो जाए। अब ये दाइयां जो थी गैर मालूम थी, इन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन अपने काम से देखने के आज उनका नाम खरूज की किताब में पहले बाब में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसे काम करेंगे तो हर जगह हम भी खुदा के नाम से चिराग की मानी रोशन होंगे। आपके सामने, मैंने कहा जो आपके सामने कहानी बयान की गई है, वो ये बयान की गई है कि दलेरी के साथ कलाम सुनाया, ईमानदारी के साथ अपने फराइज को पूरा किया। आज जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी पेशा है, दलेरी के साथ ईमानदारी से काम करें। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका गला मत मोड़े, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो आपकी नस्लों तक लानत की सूरत में जाएगा। अपने पेशे से वफादार रहें, जो काम करती हैं बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से काम करें। हालेलुया, हालेलुया।
کیونکہ جب آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو خدا ہمیشہ آپ کو دیکھ کر آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دے گا اور آپ کو اجر دے گا. آپ کی آبادیاں آپ کے کار سلامتی سے آباد رہیں گے. اب دوسرا کریکٹر جو میں آپ کے سامنے لانے والی ہوں وہ ہے برسیلی جلال. عام بندہ جس کو لوگ نہیں جانتے لیکن ہم نہیں جانتے, آپ بھی نہیں جانتے, لیکن جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں اس کے نام کو جلال دیتے ہیں تو خدا اس کو نمایاں کر دیتا ہے. میرے ساتھ نکالیں دوسرا سیموئیل اس کا 19واں چیپٹر 32 آیت کے ہم یوں دیکھیں گے. یہاں لکھا ہے کہ اور یہ برزیلی نہایت عمر رسیدہ آدمی یعنی 80 برس کا تھا. اس نے بادشاہ کو جب تک وہ منائم میں رہا رسد پہنچائی تھی, اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا یعنی بوڑھا شخص, لیکن جوانوں کی طرح مضبوط. اپنے آپ کا 80-90 سال کے بھی ہو جائے کبھی ہار نہ مانے خدا کے لیے, ہمیشہ اسٹرانگ رہے کیونکہ خدا ہماری قوت ہے, خدا ہماری تازگی ہے, خدا ہماری ڈھال ہے. تو یہ مرد جو ہے, یہ خدا کا بندہ جو ہے برزیلی جلاتی کے جلاد کا رہنے والا ہے اور اس کا نام برزیلی مشہور ہے اور 80 برس کا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے نام کا عبرانی میں جو اس کا نام ہے اس کا مطلب ہے مرد آہن, مین آف آئرن, یعنی لوہے کی طرح مضبوط. جیسے لوہا موٹا تھا اسے موڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ لوہے کی طرح مضبوط تھا. اس کا کوئی سیاسی کردار کہیں نہیں نظر آتا, عام بندہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں مزید سیکھیں سٹوری سنانا چاہتی ہوں. یہ 80 برس والے بندے نے یعنی عمر رسیدہ بندے نے جب تک بادشاہ منائم میں رہا اس نے اس کو رسد پہنچائی, اس نے اس کو اس کی مدد کی. تو سٹوری اس طریقے سے ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ ابھی سلوم ابرون میں تھا اور داؤد یروشلم میں تھا. یعنی بادشاہ ہے داؤد, یہ جو بادشاہ کا ذکر کیا گیا جس کو رسد پہنچائی گئی ہے وہ ہے داؤد بادشاہ. داؤد بادشاہ یروشلم میں تھا. تو ایسا ہوا کہ ابھی سلوم جو کہ داؤد کا بیٹا تھا بڑا ہی خوبصورت تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ داؤد کے بعد سلطنت مجھے مل جائے. اس لیے جب وہ ابرون میں تھا تو وہیں جب بادشاہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا یا اس کے لوگ ادھر ادھر ہوتے تو لوگوں کو جو اس کے ملنے آتے تھے جو اسے کہتے تھے کہ انصاف کے لیے آئے ہیں یا کوئی درخواست لے کر آتے ہیں تو ان کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا, کہتا بادشاہ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کے لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں, مجھے میرے پاس آؤ, مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ, میں تمہارے مسئلے کو حل کروں گا. یعنی اس طریقے سے کر کے اس نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا, لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا میجورٹی کو, زیادہ لوگوں کو اپنے قریب کر لیا, اپنے ساتھ ملا لیا. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ اس نے جب کافی زیادہ لوگ اپنے ساتھ ملا دیے تو اس نے اپنے ہی باپ کے خلاف یعنی داؤد بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی. داؤد بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی. اور جب داؤد بادشاہ کے خلاف بغاوت کی یعنی دوسرے لفظوں میں جنگ شروع ہو گئی, جنگ چھڑ گئی. اور جنگ جب چھڑ گئی ہے تو یروشلم سے داؤد بادشاہ منائم میں چلا گیا. منائم کے جگہ پر اس نے جا کے بنا لی, یعنی اپنا ایریا, اپنا تخت و تاج چھوڑ کے, یروشلم کو چھوڑ کے, کیونکہ جنگ شروع ہو گئی تھی اور وہ منائم میں آ گیا. ہالےلویا, ہالےلویا, ہالےلویا. اچھا داؤد یعنی جنگ شروع ہے, جنگ جاری ہے, لیکن داؤد اپنا شہر چھوڑ کر, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ بادشاہ اور اس کی نسل کو بچا لیا جائے, بادشاہ اور اس کی نسل کو بچا لیا جائے. اس لیے بادشاہ جو ہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس نے اس شہر کو چھوڑ کر منائم میں آ گیا. اور جب وہ وہاں پہنچا ہے تو آپ سنیں جس کا نام ذکر آپ سن چکے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ برزیلی جلاتی جو تھا, جب اسے پتا چلا, جو منائم میں رہتا تھا, جب اسے پتا چلا کہ بادشاہ داؤد میرے شہر میں آیا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اس نے اس کا استقبال کیا اور اس کو ویلکم کیا. ہالےلویا, ہالےلویا. اور صرف ویلکم نہیں کیا, اسے پتا تھا کہ یہ بادشاہ بھی ہے, یہ نبی بھی ہے اور یہ گاسپل سنگر بھی ہے, یہ خدا کا پرستار بھی ہے. اور جو ہی وہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے گیا تو خالی ہاتھ نہیں گیا,
बनी। ये सारी चीजें बर्जीली जला दी। जहां दाऊद बादशाह आया, उसे वेलकम कहने के साथ साथ उसने ये सारी चीजें उसकी खिदमत के लिए पेश की। हालेलुया, हालेलुया। और आज सुने, अगर आप जानते हैं किसी बारे में बात शेयर करूं, मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक दाऊद बादशाह वहां रहा, जब तक अबीसलूम और दाऊद बादशाह के बंदों में जान रही के मतवातर लगातार मुसलसल उनको रसद पहुंचाता रहा। उसने ये नहीं कहा एक दफा दे दिए तो ठीक है, अब मैं क्या करूं, खुद ही आप नहीं करें, क्योंकि वो जानता था कि ये खुदा का खादम है, वो जानता था कि ये खुदा का नबी है, वो जानता था कि ये खुदा की वर्शिप करता है, क्योंकि पीछे इसकी सारी हिस्ट्री को वो जानता था। इसलिए जब तक रहा ये सारी चीजें उसे फराहम करता। और आज ऐसा होता है कि पास का लोग आप नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं, अगर कोई खादम रोटी खाए या अगर कोई खादम बिल्डिंग बना ले या अगर कोई खादम ऐसा होता है कि अच्छे तरीके से खुशहाल जिंदगी बसर करता है, तो लोग बड़ी बातें करते हैं, लो जी चंदा खा के ऐसे हो गया, ये वैसे। ऐसा हरगिज़ मत कहे, बिल्कुल ना कहे, क्योंकि खुदा अपने खादमों की कफालत करता है। क्या बादशाह के पास, दाऊद बादशाह के पास कमी थी? बोले जी, दाऊद बादशाह के पास कमी थी? वो तो था ही बादशाह, वो तो जिधर भी ऑर्डर करता उसके लिए कुम्मा कर सकती थी, बढ़ के इससे के बढ़ के खुदा उसके लिए सब कुछ मुहैया कर सकता था। लेकिन चूंकि इसको पता चला मेरे शहर में आया, उसने कोई झिझक महसूस नहीं की, कोई डर महसूस नहीं किया, दलेरी के साथ उसको रसद पहुंचाई, सारी चीजें में। हालांकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है, वो डर सकता था, उसके अंदर डर आ सकता था कि अगर अबीसलूम जंग जीत गया, सुनिए गौर से, अगर अबीसलूम जंग जीत गया तो ये बादशाह तो खत्म है, इसके बादशाह का तो ताज तो खत्म हो जाना, मुझे इससे क्या फायदा, मुझे इससे क्या लेना देना। आया तो ठीक है, अपना बंदोबस्त करे। नहीं, जब वो उसके घर में आया, उसके शहर में आया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी किया, अपने जितनी भी सर्विसेज थी, जितनी भी खिदमत वो कर सकता था, उसने दाऊद बादशाह के लिए फराहम की। जो आज है उसने आज के बारे में फिक्र की। मैंने अभी आपको बताया कि बादशाह दाऊद बादशाह है, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन चूंकि बर्जीली जलाती ने उसकी खिदमत की तो खुदा ने उसको अजर भी दिया। जब जब हम खुदा की खिदमत करते हैं, जब जब हम उसकी नबियों की खिदमत करते हैं, जब जब उसके पापों की सेवा करते हैं, जब आपके घर में जाते हैं, आप उन्हें ब्लेस करते हैं, वो आपको ब्लेस करते हैं, तो यकीन जाने खुदा का अपना खजाना आप पर खोलेगा। अगर ये गलत होता कि पापों को ब्लेस ना किया जाता, तो क्या साबत की बेवा एलिया के लिए खाना मुहैया करती? बोले जी, साबत की बेवा एलिया के लिए खाना मुहैया करती? इसलिए उसे पता था कि एलिया खुदा का नबी है, उसने नबी की खिदमत की। क्या शनीनी औरत अलाइशा के लिए घर बनाती? उसे पता था कि आता है, रोटी पानी खाता है और मैं उसे रोटी पानी देती चला जाता है, लेकिन उसके दिल में बेकरारी थी। शनीनी औरत के दिल में बेचैनी थी कि यह खुदा का खादम इतनी दूर से मेरे लिए आता है, इसलिए उसने दीवार के ऊपर इसका खूबसूरत घर बनाया और खुदा ने जो वो बेरात थी, खुदा ने उसको औलाद वाला बना दिया। हालेलुया, आई जोरदार तालियां उसके खिलाफ के लिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, मरियम मार्था वो यीशु मसीह की खिदमत करती थी। मरियम मार्था यीशु मसीह की खिदमत करती थी, उसे कलाम सुनती थी और उनके अंदर कलाम का जो बीज था यीशु बोलता था और वो उसकी खिदमत करके बरकतें हासिल करती थी। हालेलुया। और इसके साथ साथ अगर आप नए ऐप में देखें, परसिक्ला अब्दुल्ला के बारे में लिखा है कि जब पौलुस ने खिदमत करना शुरू की, तो जब उन्होंने उसका कलाम सुना तो वो उसे अपने घर में ले गई। परसिक्ला अब्दुल्ला पौलुस को अपने घर ले गई, वहां जाके उन्होंने उसकी खिदमत की, क्योंकि पौलुस का जो शोभा था वो खेमा बनाने का था और परसिक्ला और अक्विला का जो पेशा था वो भी टेंट मेकिंग थी। इसलिए जो कमाई करते थे वो पौलुस को देते थे, ताकि पौलुस इस रुपए पैसे थे और उन्हें जीतता चला जाए और कलाम सुनाता चला जाए और खुदा का कलाम सेहतमंदी से लोगों तक पहुंचाता
आपको ना देगा, खुदा के नबियों को ना पालेगा, पालेगा कि नहीं? आई जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। रिजल्ट का निकला, मैंने पहले बताया था, क्योंकि जंग हो रही थी अबीसलूम और दाऊद के साथियों में, और जब जंग खत्म होगी अबीसलूम हार गया और दाऊद बादशाह जीत गया। और जब दाऊद बादशाह जीता है तो उसे पता था कि बरसीली जलादी जो है मुझे रेगुलर रसद पहुंचाता है, मुझे माल और दौलत कराता है, मेरे लिए भेड़ बकरियां, मक्खन और दूध हर चीज मुझे देता है, नहीं सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी पालता है। तो जब जंग खत्म हुई दाऊद बादशाह को वापस तख्त व ताज मिल गया। तो इससे पहले कि वो रुखसत होता तो उसने बरसीली जलादी से कहा कि तू मेरे साथ चल। आइए एक वाला देखते हैं, दूसरा सैमुएल और उसका 19वां बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है, सो बादशाह ने बरसीली से कहा कि तू मेरे साथ चल और मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूंगा, मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूंगा। बादशाह को पता था कि किसने मुझ पे एहसान किया, बादशाह जानता था कि किसने मेरी कफालत किया है। अब जब बादशाह का वक्त आ गया है तो वो भी नहीं भूला, उसने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तेरी कफालत करूंगा, यरूशलेम में अपने साथ रखूंगा। लेकिन बरसीली जो था उसने इनकार किया, उसने कहा मैं 80 साल का हो चुका हूँ, 80 साल का हो चुका हूँ और खाने पीने का चखने का मजा भी अब चला गया, तो मैं मजीद अगले शहर में सफर करके क्या करूंगा। इसलिए तू ऐसा कर, अगर तुझे लेकर जाना ही है तो मेरे नौकर को अपने साथ ले जा, कम आम को साथ ले जा, मेरे नौकर को मेरे साथ। देखे लिखा किताब में कि जो असूदा करता है वो खुद भी असूदा होगा, वो खुद यानी बरसीली जलादी जो वो खुद भी असूदा था, हर किस्म उसके पास नेमत थी। और जब वक्त आया तो उसने अपने नौकर को आगे किया कि इसको साथ ले जा, क्योंकि वो शायद जवान होगा कि अगर इसका भला होना चाहता है तो इसका भला हो जाए। इसलिए उसने कहा ठीक है। आए मेरे साथ हवाला निकाले, दूसरा सैमुएल 19 बाब और उसकी 38 वर्स। तब बादशाह ने कहा कि माम मेरे साथ चलेगा और जो कुछ तुझे मालूम हो वही मैं उसके साथ करूंगा, और जो कुछ तुम चाहेगा मैं तेरे लिए वही करूंगा। फिर भी बादशाह उसको नहीं भूला, उसने कहा ठीक है, तूने अपने नौकर को भेज रहा है, मैं तेरे नौकर को साथ लेकर जो तू कहेगा मैं इसके साथ करूंगा, और इसके बावजूद जो जो तुझे चाहिए, जो तू चाहता है कि तेरे साथ बनाई की जाए, मैं तेरे साथ करूंगा। मेरी प्राप्त दिली से प्यासी के साथ अगर आप खुदा के पापों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करें, खुदा इसका अजर आपको दुगना देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बरसीली की तरह जीरो से हीरो बना देगा। क्या आप याद है कि जैसे बरसीली जलादी ने खुदा के खादम की खिदमत की, एक नबी की खिदमत की, एक सच्चे परस्तार की। आपने मैं इसलिए सच्चा कह रही हूँ कि आजकल बहुत से ऐसे परस्तार भी हैं जो बस पैसे ही हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कभी भी हम उनके जरूरदार हैं तब बादशाह के, इसलिए उसने उसकी खिदमत की और अजर पाया। अगर आपके दिल में भी अभी कोई ऐसा बोझ है या बोझ नहीं था तो आज से इरादा करें कि खुदा मैं तेरा नाम सुनाने में कभी नहीं शर्माऊंगा, मैं कभी नहीं डरूंगा, मैं इसको अपने गले का फंदा नहीं बनने दूंगा, बल्कि दलेरी के साथ तेरा कलाम प्रसिद्ध अकबीला की तरह, शरीनी औरत की तरह अपने उन्होंने जैसे खातों की खिदमत की, हम भी तेरे खातों की खिदमत करेंगे, तेरे खातों के साथ भलाई करेंगे, तेरे खातों के लिए हमेशा जिसे कहते हैं ठंडा पानी लेकर खड़े होंगे। तो जरूर ऐसा करें, जरूर अपने निभाने। बहुत से ऐसे मिशनरी काम हो रहे हैं, आप देखिए बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे काम, हमारे चर्च में ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें पास्टर फिलिमोन, पास्टर हारून और उनके साथी जो हैं इसी तरीके से काम कर रहे हैं। और जब वो अनाउंसमेंट करते हैं खुदा के काम के लिए तो अपने दिलों को सख्त ना किया करें, बल्कि अपने दिलों को खोला करें, क्योंकि जो बीज आप